एक गाम इंडिया, यही है मेरा पैगाम इंडिया। मेरे भी प्यारे हैं लोग सारे, तेरे भी सुंदर अवाम इंडिया। चलो कि हम साथ मिल के पी ले मोहब्बत का ये जाम इंडिया। तू हंस के कह दे मुझे नमस्ते, मैं हंस के कह दूं सलाम इंडिया। It's now time to shift on over to People's Pride. Our well-known host here is Dr. Satish Misra. Today, Dr. Sahab's chief guest of honor is Mr. Samir Chandra, who is the Vice President of Global Geographic. This famous gentleman is well known to many in our community. Let's get these two gentlemen on the screen and follow them as they look into culture in language. Namaskar, Dr. Satish Misra. Welcome to People's Pride segment of Salam India. We are very fortunate to have Samir Chandra with us, and he is IT expert. And Samir, tell us a little bit about yourself. Namaskar, Satish ji, thank you so much. Yes, I'm into the field of IT, and also I'm adjunct faculty in one of the university here. I teach computer science subjects, and also I'm much into the Hindi literature. I occasionally write articles and some columns for some Hindi papers back in India. So what is your position there? What company and position? I work for a Japanese financial firm. I work as an assistant vice president. Assistant vice president, Yes. Wow, in IT. Yes, in the IT sector. Yeah, today's subject we want to talk about culture, Bharatiya Sanskrit, and Bhasha, language. That how language shapes up any culture. So I want to start out with the basis of all the languages, especially related to India. See, in context of India, if you see the language, especially Hindi, we have it started from 1000 after Christ, after AD. And before that, its predecessors like Abhransh was there, Prakrit, Pali, and then Sanskrit. We have a Laukic Sanskrit, then Vedic Sanskrit. So when you're talking about the culture and language, they flow together. Yeah. What happens, like if you see the Prakrit and Pali, during the period of Pali, Mahatma Buddha was there, and you will see a lot of their influence on the Pali literature. And the same way, like in 18th century, we have a lot of words, like around 7,000 to 8,000 words. They're taken from Arabic and Farsi. They become part of the Hindi language. But later on, when that influence gone, Mughal influence gone, then those words started going off. वाह वाह, बहुत ही अच्छा है, आपने बहुत अच्छा ब्रीफ में बताया कि संस्कृत मदर लैंग्वेज है जी, हम लोगों की मदर है। जितने भी भारतीय भाषाएं हैं वो संस्कृत से ओरिजिनेट करती हैं। जी, वैदिक संस्कृति सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, और उसके साथ साथ समकालीन आप देखें लौकिक संस्कृत थी। लौकिक संस्कृत मतलब जो जनसामान्य भी संस्कृत में ही वार्तालाप करते थे, और उसके बाद धीरे धीरे पाली भाषा आई, जिसमें जब गौतम बुद्ध हुए उन्होंने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में ही दिए, और जितने भी आप देखें स्तूप हैं और भी शिलालेख हैं पाली में आपको मिलेंगे, और जो भी उदाहरण हैं। उसके बाद प्राकृत भाषा आई, और प्राकृत का अपभ्रंश होते होते बहुत सारी बोलियां बनी, जैसे राजस्थान में भाषा बोली थी, पंजाबी थी, महाराष्ट्री थी। उसके बाद हिंदी का जो हम आधुनिक रूप देते हैं वो अब है। ये हिंदी कब से प्रचलित हुई? देखिए, हिंदी अगर प्रचलित हुई तो इसका इतिहास तो करीब 1000 ईस्वी शताब्दी से माना जाता है। 1000 बीसी? नहीं, बीसी नहीं, ईस्वी, 1000 ईस्वी मतलब। अच्छा। अभी जैसे हम 2015 में चल रहे हैं तो 1000 से। उससे पहले भी हिंदी थी, लेकिन दूसरे रूप में थी। अच्छा। तो जैसे अगर आप आज भी देखें, अगर आप हिंदी जानते हैं, कोई भी हिंदी जानता है तो दूसरी बोलियों को समझ लेता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती है। उसकी वजह यही है कि अगर आप देखें तो उसकी जड़ एक ही है, उसका जो मूल है, उद्गम एक ही है। ना, ये कहते हैं कि हिंदी भाषा जो है उसको सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। स्पोकन का मतलब है कि पाकिस्तान में भी हिंदी लोग समझते हैं, बांग्लादेश में भी समझते हैं, थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी बॉलीवुड टाइप की मूवीज प्रचलित हैं और लोग समझते हैं। तो आप इससे सहमत हैं कि? जी हाँ, मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये एक ही परिवार की सदस्य हैं और उनका उद्गम एक ही है। जैसे अगर आप उर्दू देखें और हिंदी देखें, कहने को तो कहा जाता है अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन ये एक देखें तो एक ही हैं, क्योंकि कुछ शब्द अलग हैं। उर्दू में अरबी और फ़ारसी के शब्द अलग हैं, हिंदी में थोड़ा संस्कृत शब्द अलग हैं, लेकिन हिंदी बाकी भाषाओं को भी शब्दों को आत्मसात करती रहती है। जैसे अगर आप
अनानास है। अगर आप जर्मनी में जाएं वहाँ पे भी उसको अनानास ही बोला जाता है। अच्छा अच्छा। तो हिंदी बहुत ही एक मैं कहूँ समृद्ध भाषा है और इसमें बहुत सारे अभिव्यक्तियों के लिए बहुत सारे शब्द हैं जो आपको दूसरी भाषाओं में नहीं मिलेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है जी, वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश है, वर्किंग लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में फ़र्क क्या है? देखिए वर्किंग जब आप इतिहास में जा रहे हैं, जब आज़ादी मिली तो धीरे धीरे राष्ट्रभाषा समिति का भी गठन हुआ था। उस वक्त राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रमोट करने के लिए, उसको प्रोन्नत करने के लिए प्रयास हुए, लेकिन फिर भी एक भाषा जिससे पूरे भारत में एक कम्युनिकेशन हो सके, लोग अपना आदान प्रदान कर सकें, खासकर अपने जो सरकारी कागजात हैं उसके लिए, सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी का ही चलन में रहा, जो धीरे धीरे अब कोशिश तो हो रहा है कि एक हमारी अपनी भाषा एक हो, लेकिन फिर भी अंग्रेजी। तो इस समय इसको इम्पोर्टेंस मिल रही है, हिंदी को जी हाँ, प्राथमिकता मिल रही है, क्योंकि कुछ वातावरण चेंज हो रहा है, राजनीतिक स्थिति चेंज हो रही है, मगर वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ क्या क्या हो रहा है यूएसए में या पूरे वर्ल्ड में? कोई ऐसी संस्था है तुम्हारे दिमाग में जो हिंदी को प्रमोट कर रही है? हाँ, जैसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति यहाँ पे एक संस्था है जो हिंदी के प्रचार प्रसार में काफ़ी अग्रसर है और इसके बहुत सारे चैप्टर्स भी हैं, जैसे भारत में भी हैं और बाकी अन्य देशों में। तो जो भी लोग हैं जो हिंदी के बारे में और जानना चाहते हैं, हिंदी अपने बच्चों को, जैसे वो तो खुद ही हिंदी भाषी हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी हिंदी के बारे में जानें, लेकिन उनको कोई ऐसा माध्यम नहीं मिलता है, कोई ऐसी जगह नहीं मिलती है जहाँ पे जा सकें। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति इस बारे में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस समय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो हम लोगों के जो चैप्टर्स हैं भारत में भी हैं, तो कई जगह भारत में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हर जगह चैप्टर हो। तो हम लोगों का प्रयास है, तुम भी उसके पार्ट हो। तो यहाँ लोकल उसमें क्या क्या एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी लोकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे अभी एक हम लोग होली के बाद 18 अप्रैल को हास्य कवि सम्मेलन करने जा रहे हैं और मैं आप सभी को निमंत्रित करता हूँ, आप सब जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हास्य कवि सम्मेलन में कृपया जरूर आएँ और हमारे कवि जिनको हमने भारत से आमंत्रित किया है वो अपने साथ हास्य, व्यंग और गीतों की एक अनूठी पेशकश करेंगे, आप उसका आनंद उठाएं। तो ये अप्रैल में एक ये हास्य कवि ही सम्मेलन नहीं है, कवि सम्मेलन ज़्यादा, क्योंकि इसमें गीत भी हैं, गीतकार भी है। एक लेडी आ रही हैं, बहुत अच्छा गीत गाती हैं, उसमें और भी हैं, व्यंग कवि भी हैं। तो एक ऐसा माहौल होता है जहाँ लोग हंसते भी हैं और सोचते भी हैं। व्यंग वाले ऐसे हैं जो सोचने की वो करते हैं, तो उससे हमें हिंदी में इंटरटेनमेंट तो ज़रूर मिलता है, मगर इंटरटेनमेंट के अलावा उसको प्रचार प्रसार करने के लिए हमें कुछ और भी एक्टिविटी करते हैं। तो उसमें हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि स्कूल्स में जाएं, स्कूल्स खोलें और ऑनलाइन एजुकेशन भी करें। और उसके बारे में कुछ बताइए आपको कि कैसे हम प्रचार प्रसार हिंदी का कर सकते हैं। हिंदी का प्रचार प्रसार जैसे बहुत सारे कार्यक्रम अब आने लगे हैं, कार्टून्स आने लगे हैं, बच्चे कार्टून फिल्मों को और कार्टून सीरियल्स को बहुत ही शौक से देखते हैं। अगर वो हिंदी में हो और ख़ासकर हिंदी कॉमिक्स हों, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के जरिए अगर इस तरह के प्रचार, मुझे मालूम है कि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा को अगर आप और बढ़ाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा ना। एक चीज़ और आती है दिमाग में, बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस हिंदी जगत में काफ़ी रहा हुआ है और उन्हें हिंदी को इंग्लिश बना दिया है। हिंदी भी यूज करो, अंग्रेजी भी यूज करो। तो ये इंग्लिश के बारे में आप क्या सोचते हो? जी हाँ, जो भी मनोरंजन माध्यम है बॉलीवुड, उनका प्रभाव जनसामान्य पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाषा भी इसके साथ साथ बदलती है। अगर आप देखें, पुरानी पिक्चरों को देखें, फिल्मों में देखें, तो जिस तरह की भाषा डायलॉग इस्तेमाल होते थे, शब्द, अब वैसे नहीं है। अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, तो एक खिचड़ी सी बनती आ रही है इंग्लिश। और ये चलन हिंदी अखबारों में भी आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें हिंदी कम और अंग्रेजी का एक मिक्सचर जो होता है, मिश्रण, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। मेरी राय में, मेरी समझ में इस चीज़ को इतना प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम हिंदी की तरफ ज़्यादा रहें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल भी दूसरे शब्दों का ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अब तो भूमंडलीकरण, उदारीकरण, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमें दुनिया से जब जुड़ना है तो हिंदी को भी और समृद्ध होना पड़ेगा, अपनी भाषा को। तो अगर हम और शब्दों को भी अपने साथ आत्मसात करेंगे, हम और समृद्ध होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे अंग्रेजी में एक अंग्रेजी की डिक्शनरी में ढूंढता हूँ कोई शब्द, तो हिंदी के भी शब्द अंग्रेजी डिक्शनरी में, वेबस्टर डिक्शनरी में आने लगे हैं।
जी जैसे जैसे गुरु है, योगा है, पंडित है, ये कई एक शब्द ऐसे हैं, तो वैसे ही हिंदी को भी ये अंग्रेजी के शब्द अडाप्ट करने चाहिए। और जी हाँ, होने लगे हैं धीरे धीरे। अगर आप देखें तो कुछ तो शब्द ऐसे हैं कि जिसमें आपको हिंदी में देखने खोजने को नहीं मिलते, और अंग्रेजी शब्द आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लगता है कि हिंदी के ही एक अंग हैं। तो वही तो प्रॉब्लम है कि सोच भी, जब मैं आया था यहाँ इस कंट्री में तब हिंदी बहुत अच्छी आती थी। धीरे धीरे 40 साल में, हमें हो गए 40 साल यहाँ रहते हुए, तो 40 साल में हमारी सोच भी अंग्रेजी की हो गई। तो उसके बारे में जी उसके लिए देखिए, जब आप आए थे 40 साल पहले, उस वक्त इतने माध्यम उपलब्ध नहीं थे। आजकल इंटरनेट है और भी माध्यम है, तो इन माध्यमों के ज़रिए आप अभी भी अपनी भाषा से जुड़े रह सकते हैं। इतना सारा साहित्य जो है इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप पढ़ें, और बहुत सारे गीत और बोलियां जो हैं आप उनके बारे में जान सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। ये बात एकदम सही है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है हिंदी में लिखने की, तो गूगल में जाता हूँ, उसको अंग्रेजी में लिखता हूँ, वो ट्रांसलेट हिंदी में अपने आप कर देता है। तो आजकल ऐसे माध्यम हो गए हैं कि हमारी सोच धीरे धीरे अंग्रेजी से हिंदी में बदल रही है, और बोलने में लगा हूँ हिंदी काफ़ी अच्छी। पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाहट लगती थी, अभी भी लगती है, तुम्हारी जैसी स्पष्ट हिंदी नहीं है, मगर फिर भी काफ़ी कुछ बदल गया है। आप बहुत ही अच्छा बोलते हैं, और इसमें कोई दो राय तो नहीं है, मैं कहूँगा। लेकिन हाँ, आजकल जो इंटरनेट है, मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा माध्यम है, और इंटरनेट में इतने ऐसे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जिनसे आप किसी भी भाषा को सीख सकते हैं, और हिंदी के बारे में तो बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कई एक स्कूल हैं, कई एक माध्यम हैं जो हिंदी सिखाते हैं। सिर्फ हिंदी नहीं, हिंदी तो एक माध्यम है अपनी कल्चर से जुड़ने का। अगर हमारे बच्चे हिंदी सीखेंगे या कल्चर से जुड़ेंगे, तो हिंदी का पढ़ना, लिखना, समझना, और हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर हैं, प्राचीन स्क्रिप्चर हैं, उनको समझने की कोशिश करना, उसके लिए हिंदी जानना ज़रूरी है। उसके बारे में आपका कोई वो है? जी हाँ, अगर देखिए, इस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब पंडित देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता आया था, तो वो इतना पॉपुलर हुआ कि उसे सीखने के, उसे पढ़ने के लिए बहुत सारे दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो हिंदी में अभी भी इतना साहित्य है, उपलब्ध है कि, लेकिन समस्या ये है कि हम कैसे उसको पढ़ें, कैसे जानें। तो उन सबको सीखने के लिए अब इंटरनेट है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप मशीन ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हाँ उस साहित्य में क्या है। तो उसके ज़रिए आप अपनी संस्कृति को, आपका कल्चर है और रहन सहन के बारे में आप ज़्यादा जान सकते हैं। जो आपने बताया ना कि जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में आया पढ़ने के लिए, तो लाइब्रेरी में गया, वहाँ देखा चंद्रकांता संतत पूरा साइंटिफिक फिक्शन के अंदर लाइब्रेरी में मौजूद था, वो भी हिंदी में। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बहुत पढ़ता था वो चंद्रकांता संतत। सभी 25, 26, 27 जितने भी उनके बुक्स थे, सब ख़त्म कर दी थी। तो इट्स नॉट ओनली लिटरेरी, मगर इंस्पिरेशनल भी था वो, काफ़ी कुछ इंस्पिरेशनल था, लिटरेरी था, साइंटिफिक था। उसे मैंने काफ़ी, और वो समय उनकी कल्पना ऐसी थी जो आजकल दिखने को मिलती है। जी, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, उनसे आपको छोटी छोटी सीख मिलती है, तो उनको पढ़ने के लिए अब तो इंग्लिश में भी हैं, अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं, लेकिन और भी ऐसे जैसे ग्रंथ हैं, अपनी संस्कृति के बारे में आप जान सकते हैं। तो हम आखिरी हमारे दर्शकों को बताइए कि वो क्या क्या कर सकते हैं हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। हिंदी को बढ़ाने के लिए कुछ काम तो किए जा सकते हैं, जैसे कि अगर आप घर में ही बच्चों को नमस्ते कहना सिखाएं और उसको और प्रोत्साहित करें। अभी देखा जाता है छोटा बच्चा और कोई नमस्ते करता है तो लोग हंसते हैं, हंसे मत, वो सीख रहा है। और हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें, कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बता सकते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर भी एक वैसा घर में भी माहौल बनेगा, और ख़ासकर अपनी हिंदी और भारत की संस्कृति के बारे में आप ज़्यादा अपने आप को करीब पाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि हिंदी का माहौल घर में बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही मैं भी सीखा, आप भी सीखे, हिंदी का माहौल था। उसके अलावा दूसरे माध्यम को भी एक क्रिटिसाइज न करें। हाँ, माध्यम को भी, और भी बहुत लोग हैं यहाँ पे, जैसे वो कुछ योगदान करना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के जरिए उससे अगर आप जुड़ के कुछ योगदान करना चाहें तो आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। और कभी भी hindi.org या hindi.dc.com पे हमारे सारी कुछ इंफॉर्मेशन है, सूचना है। तो हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। And up next,